Picture this: a bright young girl excelling in school, dreaming of becoming a doctor, a teacher, or even a leader in her community. Then one day, she's told she won't be returning to class because she's getting married. Overnight, her future was no longer hers to shape. Her education ends, and with it, so do countless opportunities. This is the harsh reality for girls in India, where forced marriage remains a powerful force, cutting education short and trapping young girls in a cycle of poverty and dependence. But it doesn't have to be that way. Welcome to Children First, a podcast hosted by Cry Child Rights in You, an NGO making a difference to children's lives for over 46 years. I'm Kriyan Rabadi, and today we're diving into how forced marriage derails a girl's right to learn and grow. We'll discuss the societal pressures behind it, the consequences of it, and the incredible work being done to keep girls in school. Joining me today are Shefali Bhushan and Jayant Samalkar, the producer and director duo behind Sthal, an award-winning film about a young girl called Savita, whose marriage is being arranged by her parents, and it's clearly been prioritized over her education. And we also have today Kumar Nilendu. He's part of the program team of CRY. And CRY has been working across India to fight forced marriage and empower girls through education. So let's begin. Nilendu, I want to start with you just to set the context and really understand the problem and how forced marriage ends education. So, in all your experience, and you have had decades of experience working on the ground, how common is it for girls in India to be pulled out of school for marriage? I will shift between Hindi and English, so I think it is fine. Sure. बहुत कॉमन है और ख़ास करके जिस तरह के समुदाय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि वंचित समुदाय है, जिसमें कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली मार्जिनलाइज जो हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, वहाँ क्राई पहुँच के काम करती है. तो वहाँ ये पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि जल्दी से जल्दी लड़कियों को अपने घर से उनके शादी वाले घर में भेज दिया जाए, क्योंकि बाद में लड़का नहीं मिलेगा, पढ़ के ये क्या करेगी, इसको तो घर में जा करके फिर घड़ी संभालना है. तो ये बहुत कॉमन है इन समुदाय में. और दूसरे तरह के समुदाय जो थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, हैव हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम है. उसमें अलग प्रॉब्लम है कि लड़कियों को पढ़ने तो देंगे, लेकिन शादी कराना है अरेंज मैरिज, तो ये वाला चक्कर शुरू हो जाता है कि लड़कियों का फोटो भेजना, फिर उसको देखने आ रहे हैं, और एक तरह से उसका एक तरह से नुमाइश होता ही रहता है. तो दोनों जगह अगर आप देखोगे वंचित समुदाय, और जहाँ के उतने वंचित नहीं है इकोनॉमिकली, लेकिन उनका अलग समस्या है. लेकिन लड़कियों के लिए दोनों जगह वही समस्या है कि वहाँ पढ़ के भी हमको शादी करना है, और यहाँ पे तो हमको पढ़ने ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि पेरेंट्स चाहते नहीं है, उनका अपना प्रेशर है. तो ये तो रियलिटी है अक्रॉस. Yeah, I've heard actually in some districts in Maharashtra, government statistics say that it's almost 20 to 30% girls are getting married before the age of 18. That's some of the statistics that I have seen from on the ground in a state like Maharashtra as well. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 जो मोस्ट ऑथेंटिक डेटा हमारे पास है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 का है. और जिसमें कि जो लड़कियों को जब इंटरव्यू किया जाता है, तो जब वो 24 की हो जाती हैं, तब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप जब 18 के थे उसके पहले आपकी शादी हुई. तो जब उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑलरेडी 6 साल का गैप है. तो वो बताती हैं कि हाँ मेरी शादी हुई है थे नहीं. तो वो डेटा क्लोज टू हो सकता है सही हो, लेकिन 100% सही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है मैरिज, क्योंकि आप उनसे बाद में More पूछ than रहे that हो. even. Yes. Wow. And what are the consequences of this on the girls themselves, on society at large, the country? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि लड़की क्या चाहती है कोई पूछता ही नहीं है. लड़की पढ़ना चाहती है, लड़की एक्सेल कर सकती है, लड़की अभी सिंपली शादी नहीं करना चाहती है. वो चाहती है कि हम अपना दोस्तों के साथ अपना जो जीवन है उसको कुछ दिन बिताएं और उसके बाद देखेंगे. वो सब ऑप्शन चॉइस तो है ही नहीं उसके पास, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी मजबूरी है. छोटे शहरों में या समुदाय जहाँ हम काम करते हैं, उनको लगता है लड़का नहीं मिलेगा, तो लड़की के ऊपर प्रेशर रहता है कि मेरे माँ बाप के ऊपर प्रेशर है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर है. उनका अपना क्या इच्छा है कोई पूछता नहीं है, ना वो कभी व्यक्त कर पाती है. दे कैन नॉट से कि मैं क्या चाहती हूँ, वो स्पेस ही उनको नहीं मिलता है. तो उसका तो उनके मानसिकता पे बहुत नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव बोलेंगे पड़ा.
और समाज का देखा जाए तो आप एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसके पास फुल पोटेंशियल है, भागीदारी होती है परिवार में, तो देश को चलाने के लिए भी तो मेल और फीमेल दोनों की भागीदारी है, लेकिन आपने उसको बंद करके रखा है एक तरह से, एक सेक्शन को आपने चेन किया हुआ है। तो आपका जो फुल पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेलेंस इन मेनी अदर थिंग्स, स्पोर्ट्स इवन, वो तो मौका मिलता ही नहीं है। तो आप अपने देश को, हम अपने देश को थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं अगर हम लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं तो, क्योंकि अगर वो सामने आ जाएंगे तो हमारा वर्कफोर्स और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो समाज पे तो नेगेटिव एकदम क्लियर असर है लॉन्ग टर्म में, अभी हमें दिखेगा नहीं लेकिन बाद में हो जाएगा, क्योंकि आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खो दिया वो उन लड़कियों के साथ, तो है तो। Yeah, and I've heard that girls who are educated, they get married later, they have children later, they have healthier children. They put their children into school and they ensure their children complete education. So in some ways that cycle of poverty can be broken if you put our girls in school. Okay, so now over to you, Shefali. Your last venture, Guilty Minds, which a legal drama was very, very well received. It was also about a woman protagonist and about women's issues. And similarly, Sthal is also about women. What draws you to these stories? And do you feel a particular responsibility as a female filmmaker to highlight them? I think I'm drawn to stories that have some question for society to be able to unravel and answer. I think inherently being a woman and being able to relate to understand, to kind of read even unsaid signals from women around me kind of helps me to understand what they might be going through. So even unconsciously or subconsciously, those stories find their way into the stories that I want to tell, or they become a part of that narrative. So I think it isn't a conscious choice that I'm a woman and I'm a woman filmmaker. So as a director or as a producer, I must back stories like these or, try to tell stories like these. It's a very natural thing that happens. Because if you are a conscious citizen, and I feel all filmmakers should be, and you want to bring out certain issues which you feel are important and they should be discussed, and that's about the most that we can do as filmmakers, as responsible filmmakers, then naturally women's questions do find their way into our narratives. How we were talking earlier, and you were telling me how it is quite difficult getting these kinds of movies out there on such subjects. So can you talk a little bit about that? Why is it difficult to get backing for a movie like this? Yes, it is very difficult to get backing, not just for a movie like this, but for any movie or series or any piece of work that is trying to make people think. Because I think we are living in an unfortunate time, in my view, where people are looking at the medium of cinema or web series even for pure entertainment, by and large. I won't generalize, but I think the maximum numbers of people are looking at it for pure entertainment. And that even precludes content which makes them even think about issues. Because they feel like, I've had a long day at work, I want to get back home, or I want to go to a cinema hall, I just want to have mindless entertainment. And so therefore the same thing then translates to what production companies or what studios will greenlight. So yes, it does have a sort of a snowballing impact on the kind of stories that you can choose to tell. It's such a pity, Shefali, because these are important stories that really need to be out there. So what was the experience like working on Sthal? The experience working on Sthal has been absolutely fantastic. Also because Jayant and I are married to each other. And he's a very a sensitive soul. And his observation skills are beyond anything I've seen in most people. So he observes situations very, very minutely.
And so I think the idea of Sthal arose when he was visiting one such arranged marriage meeting, sitting on the other side of the table, in a sense, with the men who are really questioning the woman. And he had come back from doing one such meeting for one of his cousins. And he told me about it, and he was telling me in the entire incident in great detail. You know, that people come, the men are sitting on one side, the woman is sitting on a stool, the men are just passing time, so they're talking, they're making small talk. In great detail, he was describing it. And I said, my God, this is a film, Jayant. You should write this as a film. And he started writing it. And of course, it took its time in getting made. But I think that was the beginning of the experience for me. And I like to say that I've stood by this film like the father of the baby, because I couldn't have given birth to it. I haven't seen these things firsthand. So Jayant had to be the one giving birth to it as a mother. But I think I've stood by it in whatever way I could take responsibility and help it to sort of move along like a father, like a good, responsible father would. Jayant, Shefali is right. You really have a talent for storytelling and clearly a commitment to presenting social issues in a very authentic and compassionate manner. I think even your debut film, Yata Class, was centered around class dynamics. So it's obviously you're inspired to make films like this. And I think Shefali talked about how this film was conceptualized. But I wanted to understand, how did you make it so real? Did you speak to women who have gone through that, or were there any real life incidents that kind of came to your mind when you were making this film? Basically, these are observations since my childhood. जो बातें जो मैं देखते आया हूँ बचपन से, वही मैं इस फिल्म में दिखाया है। क्योंकि मेरी दो बहनें हैं और 5 कजन सिस्टर, मेरी तो 7 सिस्टर्स हैं, अब हम जॉइंट फैमिली में, और सबकी अरेंज मैरिज हुई है। तो मैं बचपन से ये सारा देखते आया हूँ। अगर आपने फिल्म देखी है जिसमें वो बच्चा आता है, ग्लास का वॉट अपने क्या बोलते हैं, ट्रे लेके आता है, पानी का ट्रे लेके आता है, दैट इज मी बेसिकली। तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे शेफाली ने कहा कि एज ए चाइल्ड यू डोंट क्वेश्चन द ट्रेडिशन, क्योंकि ये बरसों चलता आया है, तो आपको लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं करते, चलता आया। बट जरूरी नहीं कि जो ट्रेडिशन या जो चलते आए वो सही हो, ठीक हो। तो जैसे अभी शेफाली ने कहा कि 2017 में जब मैं एक मैच मेकिंग प्रोसेस में बैठा था, एंड आई वाज रियली अनकंफर्टेबल देयर, क्योंकि जिस तरह का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन वहां पे होता है कि यू जज द गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ हर कलर और हर हाइट, वो कैसे चलती है, कैसे बोलती है, सब कुछ। तो वो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, यू ट्रीट ए गर्ल एज ए कमोडिटी, और आप ये गर्ल पसंद नहीं है पर आप दूसरे पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे, ये जो और आप डिस्कस करते हो, बेसिकली होने के बाद आप बाहर जाते हो, डिस्कस करते हो, तो वो मुझे थोड़ा खटका। और इसलिए मैंने जब शेफाली को ये कहा, तो उसने एक्चुअली मुझे इंस्पायर किया कि यू शुड राइट ए फिल्म अबाउट दिस। और सो ये अगेन इट्स नॉट कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनानी है, या मुझे ये ऑब्जर्वेशन से ऐसी कहानियां हैं जो मैं जहां से आता हूँ, वो अनटोल्ड स्टोरीज है जिन्हें बताने की जरूरत है बेसिकली। और मुझे हमेशा, क्योंकि मैं उस क्लास से आता हूँ, मैं उस सोसाइटी से आता हूँ, तो वहां पे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी तक कहीं नहीं गई है। फिर मेरी शॉर्ट फिल्म हो यत्ता, दैट इज अबाउट क्लास डायनामिक्स जो होता है, और स्थल इज अबाउट यू कैन से द जेंडर बायस एंड ये। तो ये कहानियां है कि पता नहीं नेचुरली आ गई है। ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इशू बेस्ड फिल्म बनानी है या कोई फेमिनिस्ट फिल्म बनानी है, ऐसा नहीं है। जो हमने जिंदगी देखी है और जो घटनाएं देखी है, आई ट्राई टू पोर्ट्रे इन माय फिल्म। And you've really portrayed it very authentically, Jayant. You spoke about the inception and how it came about, the film. It was obviously an incident that made you very uncomfortable.
during the course of actually filming the movie, were there any scenes that were particularly difficult for you to film that also caused you any discomfort that, I don't know, may have been difficult for the cast itself? Was there anything that was a bit challenging? I think the whole film was challenging for me Yeah. because I work with non-actors, so Yes. it was a risky, challenging thing. But I think the most difficult, every scene was difficult as a director. Uh, but मेरे लिए सबसे difficult, I think that the whole the matchmaking scene, basically जहाँ हर बार लोग आते हैं, सविता बैठी है, the first scene जहाँ सविता बैठी है और उसको सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सविता सविता ने वो लाइफ देखी है, उसने अब तक जी नहीं है, वो कभी उस मैच मेकिंग प्रोसेस में, नंदिनी जो एक्टर है, उसने कभी वो, उसने अपने बहनों के जो मैच मेकिंग प्रोसेस होती है वो देखी है, बट उसने कभी उस प्रोसेस से गुजरी नहीं है। तो उससे वो फील कराना, होता ना कि आप सवाल पूछते हो, आपको बस नीचे देखना है, आपको आंखों में आग डाल के नहीं देखना है, आपको आंसर जवाब भी देना है, लेकिन आपको नीचे देख के, वो सब छोटे छोटे न्यूआंसेस जो होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कि आपकी जो पूरी जो आप सुन पे बैठे हो, इट्स लाइक आपकी आपकी पूरी बॉडी ऐसे एक संकुचित है और आप एकदम, आपकी आंखें नीचे है, वो मैनरिज्म, वो पर्सनालिटी उसमें निकालना, वो सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि वर्किंग विथ नॉन एक्टर्स, और उसमें वो बैठक में 7 to 8 कैरेक्टर्स होते हैं, और उसको उनका भी रिएक्शन, उनका एक्शन वो करना थोड़ा डिफिकल्ट था। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। अदरवाइज ऐसा मैं एक स्पेसिफिक सीन नहीं पे कर पाऊंगा, देयर आर मेनी, बट जहां पे, बट एवरीथिंग वाज चैलेंजिंग आई थिंक फॉर मी। Yeah, but I can just from my experience of having to visiting a lot of cry projects, and the scene that you describe is what you're trying to get from the actress who's playing the main role is the sense of feeling small, of not having a voice, and for you, if you haven't experienced that must be quite difficult to have to draw that out of the actress. But you did it excellently. I mean, it really came out well in that scene, Jayant. Yeah, because Nandini hardly, the Savita character hardly speaks. इससे उसकी आंखों में वो जो सब चाहिए था, तो that was difficult because he hardly speaks in the film. So that was a difficult thing. Without saying dialogue, you have to convey the message. You have to convey the emotion. That was the most difficult. Yeah. But I know you spoke a little bit about how, it's, you don't necessarily, it's not because it's about social issues. It's obviously if something touches you, you will make a film about it. But you have tried to highlight the patriarchal mindset of Indian society. But as a man, how did you feel doing so? I think it's a responsibility. Because सब देखते आया हो, बट उसको फिल्म में पोर्ट्रे करना, और वो भी एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम सविता's पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज चैलेंजिंग एंड दैट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मैंने वही होता है कि जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन है और मेरी भी बहन है, तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी मेरी बहन थी, लिखते वक्त भी और एक करते वक्त, कि वो ऑब्जर्वेशन थे, वो कैसे, क्योंकि वो भी उसी से गई है, उसको भी रिजेक्शन आए हैं, बहुत सारे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर मेरे दिमाग में था, लिखते वक्त भी और वाइल डायरेक्टिंग ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा, एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की, और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है आदमी को औरतों के क्या बोलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करना। बट आई थिंक वो सिर्फ एक सविता की कहानी नहीं है, वैसे बहुत सारी लड़कियों की कहानी है जो कि इस प्रोसेस से गुजरी है, और उन्होंने वो कभी बोल नहीं पाई, वो कभी रिवोल्ट नहीं कर पाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर, बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर, और बिकॉज क्योंकि जैसे सर ने भी कहा कि वहां पे
अगेन मैरिज जो होता है, इट्स नॉट जस्ट इन स्मॉल टाउन, मैरिज इज नॉट जस्ट अ पर्सनल अफेयर, इट्स नॉट जस्ट फैमिली अफेयर, इट्स अ social affair. There are social pressure, there are economic transaction, there are so this is not just family affair. तो ये बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए ये एज अ मैन मैंने बड़ा एज अ मैन फिल्म मेकर बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट आई थिंक मेरे 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 मन में मेरी बहन का भी एक एग्जांपल था और बहुत सारे ऐसे लड़कियों का एग्जांपल था, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करने की कोशिश की, इसलिए आई थिंक मैं कर पाया। मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने सच किया, ठीक किया कि नहीं, वो आप बता सकते हैं, बट तो यही था। No, Jayant, you've done a wonderful job on this film. We really have. And you were saying this is a widespread phenomena. So, Ninedu, how do the families who marry off their daughters really justify it? I know it's really hard for them and they also face a great deal of pressure, but how are they justifying it? I think we spoke a little bit about it, but if you could just summarize that. Parents are not justifying themselves. The entire society is behind the parents to justify. And right. that's why वो माता पिता भी उसी समाज से आते हैं, तो समाज उनको वैलिडेट करता है, तो ये समाज के चलन के हिसाब से एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमको लड़की को जल्दी से शादी कर देनी। तो वो समस्या ही उनके दिमाग में कभी खुलता ही नहीं है कि लड़की क्या सोच रही होगी। समाज ये सोच रहा है, समाज ये कह रहा है, समाज हमारे साथ रहेगा कल को, अगर हम समाज के खिलाफ जाएंगे तो समाज हमारे खिलाफ रहेगा, हम जा नहीं सकते, मीन्स नहीं हमारे पास। तो उनका पूरा सिस्टम ऐसा ही दिमाग काम करता है कि भाई लड़कियों से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है, समाज ने ये परंपरा बना के रखी है। 8वीं पहुँच गए तो बहुत है, 8वीं मतलब अब ज़्यादा मतलब लड़का मिलेगा ही नहीं। अगर हुंडा की प्रथा है तो हुंडा देना पड़ेगा, दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। ज़्यादा पढ़ लेगी तो इसका मैच का लड़का तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे समाज में लड़के भी नहीं पढ़ते। बहुत सारे कंसिडरेशन है उनको जस्टिफाई करने के, तो वो जस्टिफाई करने का इशू पेरेंट्स के पास नहीं है। शादी नहीं करनी है ये जस्टिफाई करने की पूरी जिम्मेदारी बेचारी उस लड़की पे आ जाती है। वो कैसे इन सब से फाइट करके अगर बोले तो बोले कि हमको शादी नहीं करना है, और उस कंडीशन में लाना लड़की को अपने समाज में जहाँ ये सारा चीज़ हो रहा है, बहुत मुश्किल है। मैंने तो एक स्टोरी मेरे आँख के सामने हुआ है, मैं जल्दी बता देता हूँ। मैं लातूर में बैठा हुआ था और एक मीटिंग थी पंचायत भवन में, और वहाँ पे हम लोगों ने लड़कियों के साथ क्राई ने अपना वो शुरू किया था, उनको ग्रुप में लाना और उनको पीयर सपोर्ट देने का प्रोसेस था। ये नहीं कि उनको हमको बहुत आगे, स्टार्टिंग का प्रोसेस था। तो और महिलाएं ज़्यादा आगे आती हैं, पुरुष बाद में आते हैं किसी मीटिंग में, ये भी हमने देखा है। पुरुष को लाना बहुत मुश्किल है, उनको संगठित करना, लेकिन महिलाएं आ जाती हैं। तो वो लड़की थी बैठी हुई, और लड़की 7वीं में थी, वो 8वीं में जाना चाहती थी, और मैं बैठा हुआ था। तो मेरी मराठी उस समय बहुत टूटी फूटी थी, आज भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया मराठी में, और फिर मैं हिंदी पे शिफ्ट कर गया। तो हिंदी पे वहाँ सब कंफर्टेबल थे। उस लड़की की माँ भी उस मीटिंग में थी, और उस लड़की का चाचा पीछे कहीं बैठे हुए थे गेट के पास। और कॉन्टेक्स्ट बाद में हमको हमारे पार्टनर जो ऑन ग्राउंड स्टाफ बताया कि इसकी माँ का, इसके पिताजी का डेथ हो चुका है, और सारा डिसीजन ये चाचा लेते हैं। ये मुझे बाद में पता चला। तो लड़की की माँ और लड़की बैठी हुई थी, और जब ये चर्चा हुई कि आपको पढ़ना चाहिए, आप क्या बनना चाहती हैं, सवाल ये था, वहाँ डिस्कस हो रहा था। तो वो लड़की वहीं पे फुट फुट के रोने लगी। हाँ, शी वाज क्राइंग। उसको लगा कि उसका कुछ बांध ऐसा टूट गया है, और उसकी माँ भी रोने लगी, और वहीं पे झगड़ा शुरू हो गया। उसको अपना हस्बैंड का भाई जो वहाँ बैठा था ना, वो चूंकि घर देखता था, सारा डिसीजन वो लेता था, वो कह रही थी कि ये मेरी बेटी को चाहता है कि जल्दी शादी हो जाए, पूरा समाज इसके साथ है, मैं क्या करूँ, मेरा तो हस्बैंड भी नहीं है, तो कि मैं किसके पास जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ेगी, और मेरी बेटी म्यूज़िक में बहुत अच्छी है। और ये मेरे कल्पना से भी बाहर था कि यहाँ म्यूज़िक की बात भी हो सकती है इस मीटिंग में, तो गा के दिखाओ। और उस लड़की ने रोने के बाद अपने को कलेक्ट किया और गाया, और अच्छा गाया, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा गाया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जब हम जाके देखते हैं तो लगता है कि लड़कियों को आत्मविश्वास देना चाहिए, शायद वो आ जाए। तो ये कहानी के बाद ये समझ में आया कि वहाँ समाज कैसा चल रहा है, और वहाँ पे आप अगर लड़की को खड़ा करना है तो लड़की की माँ को भी आपको साथ में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अंत में वही फाइट कर रही थी लड़की के लिए, बाद में पिता आता है। तो हम लोग की स्ट्रेटजी कराई कि वही रही है कि ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाते हैं। तो दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। So coming to that, how do you change mindsets? Because in the movie, there's an educated person who teaches women empowerment in class,
but can't stand up to his father when he seeks a dowry. And so access to an education and even a liberal environment doesn't necessarily translate into social change. So what else can we do, Nilendu? How else can we change mindsets? इसमें हम लोगों ने देखा है कि आपको एक ही तरफ काम करके नहीं होगा, आपको अलग अलग स्टेक होल्डर जो होते हैं सबके साथ काम करना पड़ेगा. पेरेंट्स, उनका अपना खुद का पेयर जो ग्रुप होता है, प्लस जो सिस्टम वहाँ पर है लोकल, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए है या आपको मदद देने के लिए, वो एक्टिव नहीं होते, उनके साथ भी काम करना पड़ेगा. और उसके बाद खुद लड़कियों का एजेंसी बिल्डिंग जो कराई बोलती है, हम लोग जो करते हैं कि उनको लाइफ स्किल्स के बारे में उनको हम बताएं और उनको तैयार करें. जो 15 लाइफ स्किल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ आइडेंटिटी, देन हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ अदर्स, आप कितने अच्छे से अपने अंदर के बातों को रख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करके 15 लाइफ स्किल ले जाते हैं. तो 1 2 3 4 गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल पंचायत सिस्टम, पेरेंट्स एंड देन बॉयज़. अभी एक नया चीज़ जो आया है वो बॉयज़ का आया है, क्योंकि आप सब चाइल्ड मैरिज की सारी बातें कर लो, लेकिन आप बॉयज़ के साथ कुछ बात नहीं करोगे तो बॉयज़ तो उसी परंपरा में चलेंगे. तो अभी हम लोगों का वो जिम्मेदारी है कि अब बॉयज़ को भी कैसे इसमें जोड़ें. तो ये बॉयज़ को भी साथ में लेना है, प्लस ये सारे सिस्टम्स को साथ में जब लेंगे, क्योंकि ऐसा अब भी रिसेंटली मुझे लगता है 6 महीना पहले एक कॉन्टेक्स्ट था इधर उस्मानाबाद लातूर के बॉर्डर का. लड़की जो थी वो प्रिविलेज्ड क्लास से थी, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट की शी वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी विच वी वर्क, बट कम्युनिटी के साथ ही रहती थी वहीं पे. और उसका हस्बैंड का डेथ हो गया था, तो उसका दूसरा मैरिज करना था, ऐसा चल रहा था. और उसकी बेटी थी, उसकी शादी होनी थी, पैसे वाली फैमिली थी, और वो लोग तैयार नहीं थे सुनने को. वहाँ पे हमें ये सिस्टम एक्टिवेट करने का फ़ायदा दिखा. VCPC खुद आई, विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, ग्राम बाल संरक्षण समिति, जो कि ICPS के तहत गवर्नमेंट का मैंडेट है बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम. तो VCPC चूँकि वहाँ हम लोगों ने एक्टिव किया था, तो VCPC के पास लड़कियों ये बात को ले गई, जो अपनी किशोर व मूली की एडोसेंट गर्ल्स ग्रुप, और उन्होंने जाकर के बात किया. वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, VCPC ने DCPU को रेफर कर दिया केस, और पुलिस स्टेशन को रेफर कर दिया. ये मैं सिस्टम की बात बता रहा हूँ. जब ये सिस्टम के साथ चला गया तो पुलिस को रिस्पॉन्ड करना ही था. पुलिस आई और उसके माँ बाप से बात की, और पैसे वाले लोग थे, लेकिन चूंकि इतना सिस्टम में गए थे तो कहीं पे वो जो मांडवाली बोलते हैं ना कि सेट कर लेंगे, वो सिस्टम नहीं आ पाया, क्योंकि पंचायत साथ में थी आपके, VCPC आपके साथ में था. वो मैरिज को रोकना पड़ा कि 18 के बाद ही करेंगे. तो सिस्टम के साथ काम करना भी जरूरी है, और लड़कियों में कॉन्फिडेंस था कि वो मैटर को लेकर के VCPC के साथ DCPC एंड DCPU में ले गई. Okay, so clearly the system is an important aspect. But if I refer to the movie, it's Savita who ultimately stands up for herself, right? At some point. And so in the larger scheme of things, amongst all of the things that Cry Child Rights and You does on the ground, how important is it for girls to be empowered? That aspect, how critical do you feel that If you ask me, simply saying that 80-20 का रेशियो है. 80 वेटेज में दूंगा कि लड़कियां खुद के ऊपर as high as that. और बाकी सपोर्ट सिस्टम उसको हेल्प करता है. तो लड़कियों को तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देना. और इसके लिए क्राई का मेजर इन्वेस्टमेंट तो उसी में जा रहा है. आपको पता ही है ये चीज़ कि हम कैसे उनको बोलने के लिए तैयार कर पाए, कि वो अपने मन की इच्छा बोल पाए. और अभी तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर 70% से ज़्यादा लड़कियाँ क्लास 10 के ऊपर जाती ही नहीं थी. आज हमारा क्राई का इंटरवेंशन के बाद वहाँ हम 90+ देख रहे हैं, कहीं कहीं पे 94% लड़कियाँ 10वीं पास करके 11वीं में जा रही है. और हम लोग ये ऑप्शंस भी उनको दिखा रहे हैं कि आप लाइफ में कर क्या सकते हैं. ठीक है, हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शंस तो है. तो वो ऑप्शंस के बारे में भी बात कर रहे हैं. तो ये चेंज हमें दिखना शुरू हुआ है, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी चेंज होने के लिए सिर्फ क्राई करे तो काफ़ी नहीं होगा. हमें अगर देशव्यापी बदलाव चाहिए तो बाकी सभी को इस पर जोड़ना होगा. लेकिन 80% लड़कियों को तैयार करने में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और बाकी 20% भी मस्ट है, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करेगा उनके डिसीजन में. Yeah, I've been to programs where the girls who are empowered, they're actually, when they find out that their friend is getting married, they've actually gone and spoken to the parents. ये जो कहानी बताई उसमें लड़कियों ने yeah, it's the girls themselves that are driving change in their villages. So
Shefali, Jayant, what has been the response to the film so far? Jayant, why don't you? Yeah. You've been traveling, talking about the film, so you've obviously got a lot of responses from people. How has it been? सुपर आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि हमें जब तक हम फिल्म फेस्टिवल में ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पे तो एक सिनेफाइल्स लोग थे, ऑडियंस थी, जिनको फिल्म तो बहुत अच्छी लग रही थी। बट रियल टेस्ट होता है बॉक्स ऑफिस, आम जनता जो फिल्म को देखे, और स्मॉल टाउन की, विलेजेस की। तो मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे हूँ और आई थिंक मैं बहुत कुछ सीखा हूँ पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि यहाँ हम तो, हमारे लिए ऑडियंस होती है मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, नागपुर, पुणे मुंबई की ऑडियंस देख लिया, उनको कैसा लगा, बट यहाँ तक वो सिनेमा पहुंचता नहीं है। मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल टाउन से वरोरा है, भद्रावती है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में वनी है, जहाँ पे जनरली एक कमर्शियल सिनेमा आता है। अभी तक वहां पे छावा छावा ही चल रहा था, या उसके पहले पुष्पा या एनिमल चल रहे थे। तो उनको वो सिनेमा, उनके लिए सिनेमा वो है, वो सिनेमा है, मैं उनको दोहराया नहीं, उनके लिए। लेकिन रियल सिनेमा, रियल एंटरटेनमेंट वो है। इस टाइप की फिल्म में, सरल टाइप की, जो आपको थोड़ा एंटरटेन भी करे और थोड़ा सोचने में मजबूर भी करे, वो उनको आदत नहीं है इस टाइप के सिनेमा देखने की। उनकी वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हम सिनेमा वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो अभी इसलिए मैं जब ये सिनेमा मैं हर थिएटर में जा रहा हूँ, जहाँ पे सिंगल थिएटर्स है, मल्टीप्लेक्स में भी जा रहा हूँ, तो लोग देखने के बाद उनको मजा आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारी कहानी है, हमारी भाषा बोल रहे हैं, हमारे कैरेक्टर जो रियल है, हम लोग है, यहाँ पे कोई हीरो नहीं है, आम आम लोग है, वहाँ काम कर रहे हैं, अपनी भाषा बोल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उनका कल्चर दिख रहा है। तो उनको अच्छा लग रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में हो रहा है। अभी तक तो सिनेमा में तो एक हीरो होता है, वो गुंडों को मारता है, पुष्पा होता है, जो कि एक यू कैन से ड्रीम या एस्पिरेशनल वॉट एवर आप बोल सकते हो। बट यहाँ पे हम उनकी कहानी बता रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। तो बहुत रियल है उनको, लोग इमोशनल हो रहे हैं, लोगों को अपने क्योंकि यहाँ पे तो अरेंज मैरिज तो अभी भी बड़ा प्रेवलेंट है, तो किसी को अपनी बहन की याद आती है, किसी को माँ की याद आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको। और बस एक ही उनका फीडबैक है कि यार अगर 2 गाने होते तो अच्छा होता फिल्म में। Yeah, it's expected of all films to have a couple of songs. एग्जैक्टली और एक ही गाना है, और 2 गाने डाल देते तो अच्छा होता, और थोड़ी लंबी होती तो मजा आता। अभी क्या है, फिल्म सिर्फ 2.25 घंटे की है, तो जो पैसा वसूल होता है ना, तो पैसा वसूल करने के लिए थोड़ी लंबी, 2.5 to 3 मैं ये hours चीज it should be. एग्जैक्टली, तो दैट इज अ सिनेमा, वो होना चाहिए। तो मैं ये चीजें सीखा हूँ कि नेक्स्ट फिल्म में, मेरे फिल्म में 4 गाने होंगे, और और फिल्म 2.5 या 3 घंटे की होगी, लेकिन कहानी हमारी होगी, हमें जो कहनी है, हमें जो सोशल या पॉलिटिकल वॉट जो हमें बात कहनी है वही कहेंगे, बट उनके अंदाज में कहेंगे। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आई थिंक। या एवरीवन, That's really good to know. I'm actually looking forward to showing this film to some of our girls in our projects, and I think it'll be really impactful for them as well. Do you think, Jayant and Shefali, films like this can change public perception? Have you received any responses from viewers that show this kind of real impact? Yeah, I want to say that, one of my fears, my own personal fears, was that it is a film which is shot in Jayant's own native village. His own family is a part of this film, but hardly a handful of them have read the entire script. They don't really know what it's trying to say and the impact with which it will say it. So there was a part of me that was fearful that what is their response going to be? Because this is a system, a tradition that they have lived with, that they continue to live with and practice. But I am extremely heartened to see that they just get into the story of Savita and they feel for her, and they see, for the first time, they also see it as Jayant wanted to show it, or that Jayant saw it when he was on the other side. So they are also really looking at that reality from a very different perspective, which I think is a great beginning. If you just begin to see that, oh,
I have not been thinking about it because I'm conditioned to sort of accept this as the only way. I'm not even thinking about what the girl might be feeling, but maybe I should sit up and take note of this. I think then our job is done if that question itself arises in their minds. Yeah, that's exactly it. At least you make people think about it, right? Because you're showing it in such a real manner, and so people start thinking about, their daughters, the women in their life. And I think that if the film is doing that, I think that is what you really want for the movie and what you want people to see at the end of the movie. Nilendu, for those who are listening, what are the most practical ways that they can support girls' education and also help prevent, forced marriage or, even what they're portraying in the film? Not giving women choices or making this a priority from what the girl actually wants. How do you what can people do? I think people want to make, because I think films like this can really make people think. But sometimes you feel, now, what do I do next? How can I create change? I think what happens when a girl says something today in our family. Let us look within our family first. That is from where the things will start changing. Now, if a mother feels and a father feels that, okay, I did not allow her to speak, मैंने इसको बोलने नहीं दिया, अच्छा नहीं किया, ये मन में आना तो कहाँ से शुरू होगा? तो आपको अपने फैमिली से देखना चाहिए. फिर आप अपने सराउंडिंग में देखो कि आप कोई अगर मदद को चाहता है, आप किसी से बात कर सकते हो, उनका ग्रुप है, उनमें अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट आपके आस पड़ोस में, ज़रूरी नहीं कि आप जा कर के वहाँ जहाँ हो रहा है वहीं काम करो, आप अपने आसपास देखना शुरू करो. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको सपोर्ट करना है, अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ गई, ऐसी एग्जाम्पल आ गए जहाँ हमको एक्ट करना है और आपको डर भी लग रहा है कि मेरा तो नौकरी है, मैं तो सुबह चला जाऊँगा, कैसे करूँगा, देन आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, आप किसको ला सकते हो जिसके द्वारा कि फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम हो सकता है. CWC है, JJB है, वार्ड लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है इन केस ऑफ अर्बन एरियाज़, और VCPC है, ग्राम बाल संरक्षण समिति है. और उसके बाद क्या आप लड़कियों को सुनने के लिए तैयार हो अपने घर में? अंत में वहीं से शुरुआत भी वहीं होगी और अंत भी मेरे हिसाब से वहीं होगा. जिस दिन ये होने लगेगा कि शांति से बैठ के सुन रहे हैं और सुन के उसकी बात को इधर उधर नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और उसको चॉइस दे रहे हैं, वहीं से शुरुआत होगी और वहीं से बदलाव होगा. बाकी चीज़ें सपोर्टिव आ जाएंगी, लेकिन फैमिली के अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है. मैं तो ये भी देखा हूँ कि सास बहू का जो मैटर आता है उसमें सबसे ज़्यादा टॉर्चर शायद बहू को सास ही करती है. और ऐसा मतलब मैं अपने समाज में तो देखा हूँ, और वही कभी बहू थी. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें उनको भी साथ में लेना पड़ेगा. यानी कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो कि ट्रेडिशन के हार्विंजर्स होते हैं ना, कि वो ट्रेडिशन को लेके चलते हैं आगे, उनके साथ भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. कि आपके समय में ऐसा हुआ था, ज़रूरी तो नहीं है कि अभी भी ऐसा ही हो. बदलाव तो आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी. उनको एक रिस्पेक्ट देना, उनके ओपिनियन को समझना, लेकिन उनको अपने ओपिनियन के बारे में बताना कि चेंज क्यों होना ज़रूरी है. आपके समय में अलग था, अभी अलग है, आपका सहयोग का ज़रूरत है. वो बहुत जगह पर मैंने देखा है, काम भी किया है. और हम लोगों ने फिर वो मदर इन लॉ और उनके साथ भी काम किया. खास करके जब महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उनको काम भी करना है और उनके बच्चे हैं छोटे, कौन देखेगा, तो वो साथ में लेके जाती हैं. आदिवासी समुदाय में हमने देखा है, खास करके विदर्भ की बात करें जहाँ से आप खुद बिलोंग करते हैं. मैं बहुत काम किया हूँ, आज भी किराए का प्रोजेक्ट्स है गढ़चिरौली में, वर्धा में, अवनी ब्लॉक में. तो वहाँ जाकर देखता हूँ कि वो अभी हुई प्रेगनेंसी ख़त्म हुआ है और वो बांध करके निकल गई जंगल में. वहाँ पे उनका रोल बहुत आता है. तो ये सारी चीज़ें साथ में करने की ज़रूरत है, लेकिन फैमिली फर्स्ट. आप अपने अंदर और अपने आसपास के समुदाय में देखो कि आप क्या कर सकते हो, और अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप किसी की मदद ले सकते हो क्या, ये करने की ज़रूरत है. मुझे लगता है ऐसे हो. Yeah, I think if I had to really sum it up, it's about girls and women having a voice, and for society and family and society and for rest of us to actually listen. I think if I had to really sum it up. So
with that, it's time to wrap up. I want to take a moment to thank our incredible guests from Sthal, Jayant and Shefali. Your vision in telling this story has brought an often overlooked reality to the screen in a way that is powerful and it's necessary. Thank you for using your platform to spark conversations that truly, truly matter. To all our listeners, I wanted to leave you with this. Every time a girl is forced into marriage, we don't just lose a student. We lose a future teacher, a doctor, a leader. But change is possible. Whether it's supporting organizations like CRY, mentoring young girls, or simply questioning traditions in our own families and communities, we all have a role to play. Thank you to all our listeners for being part of this conversation. By tuning in today, you've taken the first step towards making a difference. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.